حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم فقال، یہ جو میں نے خطبہ شعبانیہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے خطاب کیا اور ہم لوگوں کو بتایا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خطبے میں کیا فرمایا ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ مولائے متقیان نے بتایا ہے کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے ہم کو آخری جمعے کو ہدایات دیتے ہوئے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ مولائے متقیان نے یہ اس لیے نہیں بیان کی ہے کہ ہم مولا کا چاہنے والا اپنے کو کہتے رہیں اور مولا کی اس ہدایات کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اس سے ہم غافل ہو جائیں۔ رسول اللہ نے خطبے میں کیا فرمایا ہے کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، کیا فرمایا ہے کہ جس کے دن باقی دنوں، جس کی راتیں باقی راتوں سے اور جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں، لہذا ہم کو اس مہینے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے خدا نخواستہ ہماری غفلت کی وجہ سے چلا گیا تو آگے کی زندگی، آگے اگلا رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے۔ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں، آج کل موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے کب آ جائے۔ جوان بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں 70 سال میں مرنا ہے، نہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں 40 سال میں مرنا ہے، جوان ہو کے مرنا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو جب موت کا یقین نہیں ہے، یہ موت کا نظام قدرت کے پاس ہے، تو اس اللہ کی ہم عبادت کر کے اپنے کو بالکل پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کو ہم پاک کر لیں، اپنے کانوں کو ہم درست کر لیں، اپنے پیروں کو اگر ہم غلط کاموں سے لے جا رہے ہیں تو اس سے ہم روک لیں، اس لیے کہ روز قیامت یہ ہمارا ہر عضو جو ہے ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا، یہ فریاد کرے گا کہ پروردگارا ان کے قبضے میں مجھے دیا تھا، اب میں کیا کرتا کہ انہوں نے ہم سے ہاتھوں سے غلط کام انجام دیا۔ ان پیروں کو جو ہے، ان پیروں سے جو ہے یہ گناہ کرنے کے لیے گئے، ان آنکھوں سے غلط کام کیا، لہٰذا ہم کو
इस माह रमज़ान में अपने में जो है, जो हम में ज़र्रा बराबर भी गुनाहों की वजह से हमारे बदन में गंदगी घुस गई है, उसको हमको निकालना है और अपने गुनाहों की तौबा करना है। रोज़ा क्या है? इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वज़कुरू बिजूइकुम व अतशिकुम फ़ीहे जुआ यौमुल क़यामते व अतशहु व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकिनकुम व वक़्क़िरू कुबारकुम वरहमू सिगारकुम वसिलू अर्हामकुम। इस महीने में हमारे ऊपर क्या वाजिब है, क्या लाजिम है? इस महीने की भूख और प्यास से क़यामत की भूख और प्यास को याद करो कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचान नहीं रहे होगा, बस अपने आमाल की फ़िक्र होगी और अपने फलाह की फ़िक्र होगी कि हमारी फलाह हो, बहबूद हो और हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। लिहाजा हम ये आमाल करके अपने गुनाहों में हम कमी ला सकते हैं। क्या है? मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देखो, फ़ुक़रा और मसाकीन को हम झिड़के नहीं, बल्कि अगर हमको मुमकिन है तो हम उनकी भूखो प्यास का इंतज़ाम करें। अगर वो हमसे तलब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको इनकार करने का कोई हक़ नहीं है कि साहब जो है उनको झटक दें या इनकार कर दें या हम उनको गालियां दे दें, हमें कोई अख्तियार नहीं है। हमको सोचना ये चाहिए कि जिसने मांगा है तो उसने कुछ हमारी तौक़ीर और अज़मत सोच के मांगा है, और हम जिससे मांग रहे हैं वो कितनी तौक़ीर वाला है, जिसने हमको पैदा किया, हमारे रिज़्क़ का वादा जिस तरह किया था उसी तरीक़े से आज भी रिज़्क़ दे रहा है, अपनी हर मखलूक को रिज़्क़ दे रहा है। चाहे अब मखलूक चाहे जो है बद काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, ये हमारे ऊपर है। ये हमारे ऊपर हमारे अख्तियार में इसलिए दिया गया है कि ताकि हम रोज़े क़यामत हम कह सकें कि परवरदिगारा, अगर हमारे कब्ज़े कुदरत में ये चीज़ें होती तो हम जो है तेरी इबादत इस तरीके से करते कि जिस तरीके से करने का हक़ था। लिहाजा हमको इस ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी में पावर ऑफ अथॉरिटी कुरान परवरदिगार आलम ने दी है। अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक टीवी है, टीवी आपने घर पे रख दिया, अब टीवी में जो है, अब टीवी का इस्तेमाल हमको करना है। अब हम चैनल कौन सा देखना हराम है, कौन सा देखना हमारे लिए हलाल है, उसका इंतखाब हमें करना है कि हमको हराम चीज़ें देखने से पहले हमको सोच लेना है कि बारगाह परवरदिगार में हमें जाना है और अल्लाह ने इन सब चीज़ों को हराम करार दिया है। तो टीवी नाजायज़ नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल जो है वो हम नाजायज़ तौर से ना करें। तो क्या फरमाया है कि इस महीने में ख़ास तौर से हम मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दें और उनकी मदद करें और बूढ़ों की ताज़ीम करो। ऐसा नहीं कि जो है कि बूढ़े हो गए सब साहब जो है अब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जो है कि किसी तरीके से, चूँकि हर तरीके से इंसान कमज़ोर हो जाता है बुढ़ापे में, लिहाजा हमको बूढ़ों के ऊपर हंसना नहीं है, बल्कि हमको उनकी ताज़ीम करना है। छोटों पर रहम करो, जो छोटे हैं आपसे उनके ऊपर रहम करो और रिश्तेदारों पर मेहरबानी किया करो। ज़ाहिर सी बात है कि जो है कि रिश्तेदार पर हम जब मेहरबान होंगे तो खुदावंद आलम हमारे ऊपर मेहरबान होगा। आगे
زبان اور آنکھ کا روزہ جو ہے کس طرح اس کی وضاحت کی ہے حضرت نے، وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَىٰ أَبْصَارِكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاستِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی حرام کھانے سے اپنے کو بچاؤ، غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے اپنی زبان کو بچائے رہو، اس لیے کہ یہ ایک چٹاک کی زبان ہمیں اس گفتگو کے ذریعے سے کہاں لے جائے گی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ لہذا خاص طور سے اس پر پابندی لگاؤ کہ غیبت ہم نہ کریں، اپنی آنکھوں اور کانوں کو جو ہے حرام چیزوں سے محفوظ رکھیں، جن کا دیکھنا حلال ہے ان کو ہم آنکھوں کے ذریعے سے دیکھیں، اور جن کا دیکھنا حرام ہے اس سے جو ہے ہم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں، اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں ہے اپنے کانوں کو اس سے بچاؤ۔ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جو ہے کہ ہم جب ہر جسم کے ہر اعضاء سے روزہ رکھیں گے تبھی ہمارا روزہ ہوگا، ورنہ فاقہ ہوگا۔ تو ہم فاقہ نہ کریں ماہ رمضان میں، بلکہ روزہ رکھیں، بارگاہ پروردگاری میں قرآن کی تلاوت بہت کثرت سے کریں، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ہے کہ ہمارے جیبوں میں اگر کوئی مال رکھا ہوا ہے جسے ہم کما رہے ہیں، اللہ نے ہم کو توقیر دی ہے اور ہماری جیبوں میں دے دیا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ہمارے باپ کا ہے، بلکہ اس مال میں غربا کے حقوق ہیں۔ لہٰذا ان حقوق کو اگر آپ نہیں پہنچائیں گے اور وہ مال جو ہے بینک بیلنس کر کے رکھ لیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ غاصب کہلائیں گے۔ آگے خطبہ شعبانیہ میں کیا فرمایا ہے کہ تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم۔ کیا فرمایا ہے کہ یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے یتیموں پر رحم کریں۔ اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں پر رحم کرو، ان کی عام مہینوں میں بھی کہا گیا ہے یتیموں پر رحم کرو، اور اس میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ آپ روزہ افطار کر کے اپنے گھر میں چین سے سو رہے ہوں اور کوئی جو ہے روزہ افطار کرنے کے بعد بھوکا اپنے گھر میں لیٹا ہو۔ تو اگر جو ہے کوئی گھر میں بھوکا آپ لیٹا ہوا ہے اور آس پاس میں ہے آپ کے، تو آپ کا کھانا حرام ہے۔ آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ۔ اور کیا فرمایا ہے کہ نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، کہ نماز کا وقت بہترین وقت ہے کہ بارگاہ خدا میں اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اس کے لیے ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ دیکھیے نماز کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو آپ بوجھ نہ سمجھیں،
नमाज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है कि साहब जब आप कुर्ता पैजामा पहने होंगे, टोपी रखे होंगे, अमामा रखे होंगे, तभी जो है नमाज पढ़ी जा सकती है। बल्कि नमाज के लिए ये शर्त है कि आपका लिबास पाक होना चाहिए, गस्बी नहीं होना चाहिए। आप चाहे पैंट शर्ट में हों, चाहे आप कुर्ते पैजामे में हों, चाहे आप जो है लुंगी और कुर्ते में हों, आप नमाज अदा कर सकते हैं। माह रमज़ान में ज़ाहिर है कि इसके लिए ताकीद की गई है, और हज़रत ने फरमाया है कि देखो नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को दुआओं के लिए उठा दो। वयंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहा बिर्रहमत इला इबादिही, और क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला रहमत की निगाह उस वक्त अपने बंदों की तरफ करता है कि जब अल्लाह की वो इबादत कर रहा है, और इबादत करने के बाद अल्लाह से कुछ मांगता है। लिहाजा जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह से मांगो। अगर इंसान के ऊपर तवक्को की तो कुछ भी ना मिलने वाला है, और अगर इबादत करो तो अल्लाह के लिए इबादत करो। इंसान कुछ देने वाला नहीं है। अल्लाह की इबादत आप मख्फी तरीके से करें, और ज़र्रा बराबर भी अगर इबादत खुदाबंदी में किसी को शरीक कर लिया कि फ़लाँ शख्स मुझे देखे और देखने के बाद मेरी वाह वाह करे कि इससे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, तो जाहिर है कि जो है कि ऐसी नमाज खुदाबंद आलम हमारे मुंह पे मार देगा। लिहाजा हमको चाहिए कि हम मख्फी और रात की तारीकी में अगर जो है इबादत खुदाबंदी करें बेहतर तरीके से, तो उससे बढ़िया क्या है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब ऐसा नहीं है कि जो है कि कोई शख्स ये कहे कि जो है कि मौलाना ने तो कहा है कि रात की तारीकी में नमाज पढ़िए और इबादत कीजिए, और मालूम हुआ कि जो है कि दिन के लिए तो कहा नहीं है। लिहाजा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि नमाज के लिए आपका एक तन्हाई के गोशे में जाके बयान, यानी जो है आप अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से रुजू हों, अल्लाह से मांगें। लिहाजा दिन में भी आपको इबादत खुदाबंदी करना है, रात में भी आपको करना है। ये तो मैंने इसलिए बयान किया है कि जो है कि आप जब अल्लाह की इबादत के लिए अगर वक्त कोई मुअय्यन कर रहे हैं तो बिल्कुल गोशा नशी हो जाएं, बिल्कुल आपका ध्यान अल्लाह की तरफ होना चाहिए। आगे क्या फरमाया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युजीबुहुम इज़ा नाजूहो व युलबीहुम इज़ा नादूहो, और क्या फरमाया आपने, मुनाजात करते हैं वो और इनका जवाब देता है। जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो खुदावंद आलम जवाब देता है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता। वह इससे मुनाजात करते हैं। जाहिर है कि जो है कि जब मुनाजात आप करेंगे परवरदिगार आलम से, तो खुदावंद आलम आपकी जो है दुआओं को कबूल करेगा, और जो इसको पुकारते हैं उनको वो लब्बैक के साथ जवाब इनायत फरमाता है। ऐसा नहीं कि जो है कि आप अल्लाह से जो है मांग रहे हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह जवाब नहीं देता। अल्लाह जवाब देता है। अल्लाह के नज़दीक हमारी और आपकी, हम आप इस तरीक़े से हैं कि जैसे हमारी और आपकी औलाद हमारे और आपके नज़दीक है, इस तरीक़े से हमारी अल्लाह के नज़दीक अज़मत है। वयुतीहिम इज़ा सालूहु, और अपने बंदों को अता फरमाता है जब वो इससे सवाल करते हैं। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है कि अल्लाह आपको नवाजता है, और ना नवाजे खुदा न खास्ता तो हमारी ये ज़िंदगी कैसे चले। लिहाजा हमको तवक्को अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए और अल्लाह ही से मांगना चाहिए। वयस्तजीबु लहुम इज़ा दऊहु, और जब दुआ करते हो तो इनको इस दुआ को, और जब दुआ करते हैं तो इनकी दुआ कबूल फरमाता है परवरदिगार आलम। जब आप दुआ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है कि इस दुआ को खुदावंद आलम कबूल करता है। लिहाजा हमको चाहिए कि जो है कि हम
अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। आगे खुतबे में क्या फरमाया कि अय्युहन्नास मन फतर मिनकुम साइमन मुमिनन फी हाज़ा शहर कान लहू बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्कुन नस्मतुन व मग़फ़िरतुन लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही। जो शख्स इस महीने में किसी मोमिन का रोज़ा इफ्तार कराएगा तो खुदा उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब इनायत फरमाएगा और इसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस महीने में हम लोग रोज़ादारों का इफ्तार भी कराएं। वकील या रसूल अल्लाह फ़लैस कुल्लुना नक़दिरु अला ज़ालिक। लोगों ने कहा कि असहाब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बाज़ ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह हम सब लोग तो इस पर कुदरत नहीं रखते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, फ़क़ाला इत्तक़ुन्नारा वलौ बिशक्किन समरतिन इत्तक़ुन्नार वलौ बेशुरबतिन मिन माइन। अगर आप जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है कि आपके पास अगर कुदरत नहीं रखते तो आप बहुत ज़्यादा इंतज़ामात करें, बिरयानी पकाएं और ये पकाएं और वो पकाएं। अगर आप कुदरत नहीं रखते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि तुम खजूर के आधे दाने या एक घूंट पानी के साथ रोज़ा इफ्तार करवाने के ज़रिए भी जहन्नम की आग से अपने को बचा सकते हो। खजूर का आधा दाना जो है वो रोज़ेदार की खिदमत में आप पेश कर दीजिए। आगे क्या फरमाया है, क्योंकि खुदावंद आलम यही सवाब उसको इनायत फरमाएगा जो इससे ज़्यादा की कुदरत न रखता हो। जाहिर सी बात है कि अगर आप खजूर पास नहीं है तो आप एक गिलास पानी आप पेश कर दीजिए। लिहाजा आप जो है रोज़ेदार की तौक़ीर करें, आप अज़मत करें और माह रमज़ान में इस चीज़ का ख़याल रखें कि खुदावंद आलम आपके गुनाहों को माफ़ कर दे और इस महीने में इस तरीक़े से अल्लाह की मेज़बानी में हम दाखिल हों कि हमारे नुफूस बिल्कुल ताहिर और पाको पाकीज़ा होना चाहिए। इंशाअल्लाह आगे हम जो है गुफ्तगू करेंगे कि सूरह यासीन क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू आपसे इंशाअल्लाह ज़्यादातर दुरूस में होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।